بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 105 105 کل ہو چکا ہے۔ ایک نیا دشمن ہم پڑھے تھے گزشتہ کل جی۔ آج ہے کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، فتح مکہ۔ دیکھیے آواز صاف آ رہی میری؟ شاید کوئی ایک جواب دے، آواز اگر صاف آ رہی ہے تو ٹھیک۔ ہاں جی چلیے۔ کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، مکہ کی فتح، رمضان سن 8 ہجری۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبے کو، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، بتوں کی گندگی سے پاک کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین لایا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے، پھر وہ بگاڑا گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین ہی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے۔ تو اس کا پہلا مقصد، پہلا فرض یہ تھا کہ کعبۃ اللہ جو سب سے پہلی مسجد ہے دنیا میں، تو وہاں سے بتوں کی گندگی کو پاک کرے، یہ مطلب ہے۔ چلیے اب پھر سے پڑھتے ہیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ کو، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، بتوں کی گندگی سے پاک کریں۔ اب تک جو کچھ ہوا ظاہر میں وہ اس فرض سے الگ تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا جس کی خاطر یہ خون کی ندیاں بہتی رہی، وہ سب اسی کی پہل تھی، یعنی اسی کا پیش خدمت، اسی کی وجہ سے تھی، کیونکہ مکہ پر قبضے کے بغیر اور کافروں کی ننگی تلواروں کو توڑے بغیر ان بتوں کو توڑنا حرم کے صحن سے باہر نہیں کیا جا سکتا جی۔ یعنی کیونکہ مکہ پر قبضے کے اور کافروں کی ننگی تلواروں کو توڑے بغیر ان بتوں کو توڑ کر حرم کے صحن سے باہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جب حرم کے صحن یعنی مکہ المکرمہ کا جو احاطہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں، حدود حرم جو مکہ المکرمہ کے ارد گرد آتا ہے جی۔ اب جبکہ ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں علم تھیں، یعنی جو تلواریں اٹھی ہوئی تھیں، باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں اٹھی تھیں وہ جھک چکی، اب وقت آ گیا کہ کعبے کو ان نجاستوں کے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ پھر سے یہ پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ اب جبکہ ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں علم تھی یعنی اٹھی ہوئی تھی وہ اب جھک چکی تھی، تو اب وقت آ گیا کہ کعبے کو ان نجاست یعنی گندگی، ان نجاستوں سے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ یعنی نجاست یعنی وہ کفر کی گندگی، شرک کی گندگی۔ حدیبیہ کی صلح کے سبب سے خود سے مسلمان اب مکہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی حدیبیہ میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں صلح حدیبیہ یعنی 1 سال تک ابھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ہے نا۔ وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی بہت دب کر، اور ایگریمنٹ ان کا آپس میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آئے تو ان کو ہم واپس نہیں کریں گے، اور مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو مدینے والے واپس کریں گے۔ تو کئی ساری شرطیں تھی اور وہ معاہدہ، وہ صلح ہوئی تھی۔ اور اس صلح میں کیا ہوا تھا؟ اس صلح میں یہ ہوا تھا کہ دونوں یعنی مسلمانوں کی طرف سے اور کفار قریش کی طرف سے وہ اعلان ہو گیا کہ جو جس طرف جانا چاہے قبیلوں کو وہ آ جائیں۔ تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ قبیلے مسلمانوں کی طرف ہو گئے اور کچھ قبیلے کس کی طرف ہو گئے؟ قریش کی طرف ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ دونوں قبیلے
कुरैशी के कबीले थे। बनु खुजा का कबीला वो मुसलमानों की तरफ से था, और बनु बकर का जो कबीला है वो कुरैश की तरफ होगा। और दोनों के दरमियान पहले से जंग, लड़ाई पहले से चलती थी। किसके? बनु खुजा और बनु बकरी, दोनों कुरैशी के कबीले। लेकिन बनु खुजा का कबीला अब मुसलमानों के साथ हो गया सुलह हुदैबिया में। अब यूं कि जब तक सुलह है, सुलह हुदैबिया है, बनु खुजा और बनु बकर दोनों अब लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब सुलह हुदैबिया हुई है। तो ये हो गया था। अब किताब में हम पढ़ेंगे, हुदैबिया के सुलह के सबब खुद से मुसलमान अब मक्का पर हमला नहीं कर सकते थे, मगर खुदा की कुदरत देखिए कि इसका मौका खुद मक्का वालों ने पैदा कर दिया। हुदैबिया की सुलह की रूह से, यानी उसकी वजह से कुछ कबीलों ने मक्का वालों का साथ दिया और कुछ मुसलमानों के साथ थे। इनमें से खुजा का कबीला मुसलमानों के साथ था, और उनके दुश्मन बनु बकर कुरैश से मिले हुए थे। मुआहदे की रूह से, यानी मुआहदे की तरफ से कुरैश के साथियों में से किसी का मुसलमानों के किसी साथी कबीले पर हमला कर देना मुआहदे को तोड़ देना था। यानी ये कि मतलब इसका ये है कि खुजा मुसलमानों के साथ था, बनु बकर कुरैश के साथ था। तो अब क्या हुआ, वहीं उन्होंने बनु बकर ने बनु खुजा पर हमला कर दिया, इसी सुलह हुदैबिया के बीच में ही। हमला करने के बाद अब वो तोड़ा किसने? बनु बकर की तरफ से ही टूटा ना, यानी कुरैशी की तरफ से टूटा। खुजा और बनु, यहाँ अब नीचे किताब में, खुजा और बनु बकर में जमाने से लड़ाइयां चली आती थी। जब तक इस्लाम से मुकाबला रहा सब मिले रहे। अब जबकि हुदैबिया की सुलह ने मुतमईन कर दिया, तो बनु बकर समझे कि अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया। यक बैक उन्होंने खुजा पर हमला कर दिया। कुरैश के बहुत से बहादुरों ने रातों को सूरतें बदल बदल कर खुजा पर तलवारें चलाई। बनु खुजा पर क्या चलाई? तलवारें चलाई। खुजा ने हरम में पनाह ली, मगर वहां भी उनको पनाह न मिल सकी। जी, शर्त के मुताबिक मुसलमानों पर उनकी मदद फर्ज थी। यानी जब ये मालूम हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बनु खुजा पर बनु बकर ने, कुरैश ने हमला कर दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा हुआ। अब उनकी क्या कहते हैं, उनकी बनु खुजा की जो मदद है वो मुसलमानों पर फर्ज हो गई। खुजा के 40 सुतर सवारों ने, यानी ऊंट सवारों ने फरियाद लेकर मदीने की राह ली। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास कासिद भेजा और 3 शर्तें पेश की कि उनमें से कोई मंजूर कर ले। 3 शर्तें क्या क्या? वो कुरैश के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भेजी थी वो ये है कि खुजा के जो लोग मारे गए हैं उनके खून के बदले में रुपया अदा करें, फिदिया अदा करें, नंबर 1। और दूसरी शर्त यह है कि बनु बकर की हिमायत से अलग हो जाएं, यानी बनु बकर की जो तुम साथ में हो तो उनको अलग कर दें, हम उनसे निपटेंगे, ये मतलब है इसका। दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है कि ऐलान हो जाए कि हुदैबिया का मुआहदा टूट चुका है। अब हुदैबिया का मुआहदा जो सुलह हुदैबिया वो टूट चुकी है, 3 में से एक मंजूर करो। कुरैश के सरदार ने कुरैश की तरफ से एक तीसरी बात मंजूर कर ली, यानी मुआहदा टूट गया। यानी ये कि हुदैबिया का मुआहदा बाकी न रहा। लेकिन कासिद के चले जाने के बाद कुरैश बहुत पछताए, यानी उनको अफसोस हुआ, और उन्होंने अबू सुफियान को अपना सफीर बनाकर, अपना नुमाइंदा बनाकर मदीना भेजा कि हुदैबिया के मुआहदे को फिर से ताजा करे, वो टूटा नहीं बल्कि फिर से ताजा करे। अबू सुफियान ने मदीना आकर पहले नबूवत की बारगाह में अर्ज की, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वहां से कोई जवाब ना मिला, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से आकर कहा, उन्होंने इनकार किया। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह के पास आए, उन्होंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा। फिर वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तय कर चुके हैं उसके बारे में उनको कुछ और मशवरा नहीं दिया जा सकता। बेहतर यह है कि तुम मस्जिद में जाकर ऐलान कर दो कि मैं
हुदैबिया की सुलह को फिर बहाल करता हूँ, यानी उसे कंटिन्यू करता हूँ। उसने यही किया। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले यानी क्या हुआ, इसका खुलासा ये मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से अबू सुफियान गए, कहाँ गया, मदीना। मदीना पहुंचे तो सबसे पहले वो अपनी बेटी हजरत थे यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी उम्मुल मुमिनीन वहां गए। कौन? अबू सुफियान। वहां जाने के बाद वो वहां बैठना चाहा चाहा अबू सुफियान उनके बिस्तर पर, तो उनकी बेटी ने यानी अबू सुफियान की बेटी ने अपना बिस्तर को हटा लिया। तो उसने कहा, अबू सुफियान ने कि ये क्यों हटाया, क्या मैं इसके काबिल नहीं, या बिस्तर मेरे काबिल नहीं है? तो उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, और ये बिस्तर तुम नापाक हो, और तुम कुफ्र और शिर्क की वजह से नापाक हो। तुम नापाक, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। फिर उसके बाद अबू सुफियान आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि सुलह हुदैबिया फिर से बढ़ा दी जाए, यानी बाकी रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात नहीं की, एराज फरमाया। तो वो फिर कहाँ चले गए? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह के पास गए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह के पास गए, तो हजरत अली ने भी जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा अबू सुफियान ने कि क्या किया जाए, तो उन्होंने ये मशवरा दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कि बेहतर यह है कि तुम मस्जिद में जाकर ऐलान कर दो कि सुलह की, हुदैबिया की सुलह को मैं बरकरार रखता हूँ। तो उसने वही किया। अब किताब में हमारे कि अबू सुफियान ने जाकर अबू सुफियान ने जाकर लोगों से ये वाकया बयान किया, यानी कहा मक्का जाकर सब ने कहा ना ये सुलह है, पेज नंबर 107 पर, और सब ने कहा कुरैश के, ना ये सुलह है कि इत्मीनान से बैठे, और ना ये जंग है कि लड़ाई का सामान करें। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तैयारियां शुरू कर दी और एहतियात की कि मक्का वालों को पता न लगे। 10 रमजान को 10,000 फौजें मक्का की तरफ बढ़ी। मक्का से एक मंजिल इधर उतर कर रात को पड़ाव डाला। कुरैश को खबर न थी। अबू सुफियान और कुरैश के दो सरदार पता लगाने को निकले। कुछ दूर निकले तो देखा कि बाहर एक फौज पड़ी है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को, जो मक्का से निकलकर पहले ही रास्ते में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच चुके थे, मक्का वालों की हालत पर रहम आया, और ये सोचकर कि अगर फौज के मक्का में दाखिले से पहले मक्का वाले खुद आकर अमन मांग लें तो इनकी मुसीबत दूर हो जाए। वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर बैठकर मक्का की राह ली। अभी कुछ दूर ही चले थे कि अबू सुफियान वगैरह मिल गए। उनको बतलाया कि इस्लाम का लश्कर मक्का के पास पहुंच चुका है, अब कुरैश की खैर नहीं। अबू सुफियान ने मशवरा पूछा, फरमाया तुम मेरे साथ चले आओ। वो साथ हो लिए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चले। रास्ते में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने देखकर कहा, कुफ्र का सरदार अब हमारे कब्जे में है, और ये कहकर झपटे यानी उन पर टूट पड़े। मगर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उनको लेकर जल्दी से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे में घुस गए और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी है। ये कौन अबू सुफियान? मालूम है, ये वही है जिसने इस्लाम के खिलाफ बदर के बाद से लेकर अब तक सारी लड़ाइयां खड़ी की थी। अरब के कबीलों को उभार उभार कर बार बार मदीने पर चढ़ा चढ़ा कर लाया था, जंग करने लाया था। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिशें की थी। अब वो मुसलमानों के पंजे में था और अपने हर जुर्म की सजा का मुस्तहिक था, लेकिन इस्लाम का रहमत मुजस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से दरगुजर करके इसको इस्लाम की बशारत सुनाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए ये फख्र का खिलअत अता करता है। फख्र का यानी खिलात यानी ये लिबास, जोड़ा लिबास अता करता है कि, और ऐलान कर दिया जाता है कि आज जो अबू सुफियान के घर में पना लेगा उससे कोई बाज पुरस नहीं। ये रहमत और आम होती है।
ارشاد ہوتا ہے کہ جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے. بس یہاں تک ہم ذرا روک دیں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل ہم زیادہ پڑھیں گے. جزاک اللہ.